Good afternoon, guys. Welcome to all. I hope you all are fine. So, we are going to move further with the next concept of social structure. But before this, I would request all of you to look the previous videos which have been provided in the playlist in order to understand the previous concepts in a better way and also carry forward with the further concepts which I am going to provide you soon in the upcoming lectures. So, let's move on. Let us look at the definitional aspect of social structure, guys. Thank you. Social structure refers to the established and the patterned social relations driven by specific values and norms. इस definition में अगर हम देखें तो दो चीज highlighted है. The blue से highlighted है established and patterned social relations and the second चीज highlighted है green से, that is the specific values and norms. That's why I have already said you that previous concepts are important because अगर आपने previous classes नहीं किया है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी कि established and the pattern social relations को हम social institutions बोलते हैं. So social structure is made up of social institutions along with the values and the norms which drive the social institutions. So this culmination of the two concepts leads to the social structure. I hope this is clear to all of you. Guys, now let us try to understand the concept of social structure through certain examples, which will play a significant role to reinforce our concept and understand the practical application of this concept. Okay? So as you can see here, we have presented the three columns. The first column deals with the institution, the second column deals with certain values and the norms, and the third column deals with the structure. So family is an institution, but when the relations in a family are guided by patriarchal values and the norms, so it gives rise to a family structure referred to as the patriarchal family structure. First of all, we must have a clear-cut understanding about what is patriarchy. Patriarchy होता क्या है? Guys, patriarchy is an ideology. एक ऐसी ideology है जहां पे मेल्स जो है वो डोमिनेट करते हैं फीमेल्स पे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, वेदर इट्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, वेदर इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, वेदर इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एस्पेक्ट रहे मेल मेंबर्स डोमिनेट करते हैं फीमेल मेंबर्स पे. सो जहां पे किसी भी फैमिली में ये डोमिनेंस नजर आ जाए वो एक स्ट्रक्चर को इमर्ज करती है, व्हिच इज रेफर्ड टू एज द पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर. अगर रियल एग्जांपल्स की बात करना चाहें तो अगर हम लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ अ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली, आप देखते होंगे ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में डिसीजन मेकिंग का पावर द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर के पास होता था. जो डिसीजंस हो, इकोनॉमिक डिसीजंस हो, फैमिली के डिसीजंस हो, सब कुछ मेल मेंबर्स लेते थे. ठीक है. इकोनॉमिक की भी अगर एस्पेक्ट पे बात आ जाए तो कोई भी अगर इकोनॉमिक डिसीजन भी लेना है तो उसमें भी मेल जो मेंबर्स थे उनकी सहमति ली जाती थी. डाइनिंग एक्टिविटीज की बात आ जाए, सोशल एक कांग्रीगेशन की बात आ जाए जहां पे सब मेंबर्स बैठ के खाते पीते हैं, वहां पे भी मेल्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है. मेल्स बैठ के खाते हैं और वीमेन जो है वो खाना परोसती हैं और फिर लास्ट में जब सारे मेल मेंबर्स खा लेते हैं तो फीमेल्स बैठ के खाती हैं. सो दिस टाइप ऑफ वैल्यू सिस्टम इन अ फैमिली clearly identifies that it is a patriarchal family structure. Similarly, if you take the example of economy, कोई भी अगर इकोनॉमी एज एन इंस्टीट्यूशन है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन वैल्यू जो सिस्टम है, इट इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट ओरिएंटेशन, सो वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इमर्ज करते हैं. ठीक है. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर उस इंस्टीट्यूशन का जो वैल्यूज है, जो नॉर्म्स है, इट्स बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड द नॉर्म्स, सो उसका टोटल आइडियोलॉजी से लेके एजेंडा एवरीथिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, their election will be based on the universal adult franchise, that is the people will elect the government will be accountable and responsible to the people. Similarly, अगर मान लीजिए ऐसे कोई वैल्यू सिस्टम है जहां पे जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है, इट विल बी बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, दैट इज रेफर्ड टू एज एस्क्राइब्ड स्टेटस. मतलब जो स्टेटस आपको खून के कारण, आपके उसी फैमिली में जन्म होने के कारण मिलता है, ऐसे वैल्यू ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं एस्क्राइब्ड वैल्यू ओरिएंटेशन, दैट इज ओरिएंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन. सो जहां पे ऐसे सिस्टम होती है तो वहां पे मोनार्क सिस्टम, मोनार्कियल गवर्नमेंट की इमर्जेंस होती है. ठीक है. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन देखते हैं हम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वैल्यूज जो है वो इक्वलिटी के बेसिस पे है, ठीक है,
अगर वैल्यू सिस्टम अगर फ्रेटर्निटी के बेसिस पे है, ट्रीटमेंट इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल के जैसे वैल्यूज पे बेसिस पे है, सो वो एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम बनाती है व्हिच विल रेफर टू एज इगैलिटेरियन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। सिमिलरली कोई भी एक एजुकेशनल सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ओरिएंटेशन भी है और साथ में क्या है कि गवर्नमेंट जैसे आपकी सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, उनका ऑब्जेक्टिव उन्हें हाइब्रिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं हम लोग। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सो उसमें एनीवन कैन टेक एडमिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो जहां पे ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इट इज रेफर्ड टू एज इगैलिटेरियन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल स्ट्रक्चर। सो आई थिंक विद दिस टेबल द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।